So a very good evening to all of you, and thank you all the people over here and for their best wishes they have given for the Teachers' Day to me, and I pray for all of you so that you people succeed and you people are able to give their best in the examination, right? तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं and we will discuss the today's session, and today's session is related to one of the important topics, and many of you were facing related to this topic, that is fishery, right? Fishery is related, you people were facing the problem. तो देखो fishery में what is there are many things to study, we have many things to study, but if you'll see the previous year question, certain areas they have restricted और उन areas से question आ रहे हैं, and those questions are not too technical, बहुत ज़्यादा technical questions नहीं है. If you'll read the notes once and if you'll try to understand what are all the things are there, then out of whatever they ask, उनमें से आप maximum solve कर लोगे. एक आध question अगर out of box question आते हैं, that nobody can solve, so no issue with those such type of questions. तो आपको उसी डायरेक्शन में दौड़ लगानी है जिस डायरेक्शन में you know the things. उस डायरेक्शन में मत भागो जहाँ चीजें आपको पता नहीं है, एंड आप पढ़ भी लोगे फिर भी आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो in context of this, I have updated the master notes. The master notes I have updated, and the new master notes I will share with you people today. Some of the recent facts and news I have added in this master notes, ठीक है? तो we will discuss as per that. So syllabus is in front of you. ये official syllabus है. So maximum questions it will revolve around this area only. This is the thing. Now we'll move on and see what we can study over here. तो इस सेशन को मैं देखो समझाने की कोशिश नहीं करूंगा. If I will try to make you people understand, then it will take lot of time, because all of you know that this is a lengthy topic. So I will point out the areas where you need to focus and from where the questions can be picked. So as per the syllabus you have seen what NABARD has given. तो आपको देखना है कि basically when we study the fishery chapter, there are basically two parts. This is the part 1 related to fishery, and this is the part 2 related to aquaculture. In both the parts, we know that fishes can be cultured in different sources, that is fresh water, brackish water, and marine water, right? So what do you mean by fishery and aquaculture? How do you differentiate between both the terms? Is there any difference between fishery and aquaculture? There's a basic difference between both the terms. Anybody who can tell the basic difference between fishery and aquaculture? Because this is the basic syllabus. Maybe you start करोगे, when you will start with the syllabus, they say fishery and aquaculture separately. So there might be a difference between both the terminologies, that is fishery and aquaculture. So एक question यहाँ से भी frame हो सकता है. So what does this mean? Aqua includes all. Aarti is saying mollusk, fishery related to true fishes, aquaculture, lobster. ठीक है, this is the general difference what you people are saying, okay? But अगर आप ध्यान से देखो, if you people see with carefully, right? If you people analyze the things carefully, you will see fisheries के अंदर ही तो हम पढ़ रहे हैं ना. We study under fisheries only fin and non-fin. Non-fin इसी के अंदर तो आ जा रहा है. Prawns को हम अलग से नहीं पढ़ रहे, ये fisheries में ही पढ़ ले रहे हैं हम, right? So this point will not be valid. यहाँ पे उतना ज़्यादा valid नहीं होगा. ये हम जब layman terms के language में बोलते हैं, then it is come. Rahul is saying very good. He is saying, I think actually correct. Rahul, very good. Under controlled environment, it is called aquaculture. Very good. Rahul has given the right answer. जब उसको हम culture करते हैं, when we grow the thing in controlled condition, then the right terminology is aquaculture. ठीक है? But fisheries जब हम terminology लेते हैं, it can be both controlled and it can be both uncontrolled. ये दोनों हो सकता है. But aquaculture is a specific term which is related to controlled condition. ये basic thing है जहाँ से आपका syllabus start होता है, and you people must know. ठीक है? What is difference between fishery and what is different between aquaculture? ठीक है? चलो. Now moving on forward, हम बढ़ते हैं. Next जो syllabus कहता है वो आपका कहता है importance. ठीक है? Importance कहता है. Next importance में आपको क्या देखना है? Importance में देखना है present rankings, इंडिया का रैंक, स्टेट के रैंक्स,
जीवीए में कितना कंट्रीब्यूशन है, एग्रीकल्चर के जीवीए में कितना कंट्रीब्यूशन है, ये इंपॉर्टेंस में कवर हो जाता है। ठीक है, मैनेजमेंट में जो हम देखेंगे उसमें नर्सिंग स्टेप्स देखेंगे, जो कि मॉडल प्रोजेक्ट्स में वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, पहले स्टॉकिंग करते हैं, फिर इसको फीडिंग करते हैं, फिर इसको रियरिंग करते हैं, फिर इसको हार्वेस्टिंग करते हैं। दीज आर ऑल द स्टेप्स इन द मैनेजमेंट। एंड लास्टली द एक्सप्लॉयटेशन, कि कैसे कैसे रिसोर्सेज है हमारे पास, ब्रैकिश वाटर किस स्टेट के पास ज्यादा है, किस स्टेट के पास नहीं है, कहाँ पे कितने एरिया अवेलेबल है, कौन कौन से रिवर सिस्टम में हम कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने फिशरीज एरिया को, वो हम एक्सप्लॉयटेशन में पढ़ते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट में जहां तक बात आती है, यहाँ पे प्रिजर्वेशन प्लस और जितने क्यूरिंग वाले स्टेप्स होते हैं या फिर बाई प्रोडक्ट्स, उसको हम पढ़ते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक सिलेबस में लिखा गया। कॉमन टर्मिनोलॉजीज जो कि हमने डिस्कस कर रखा है, वी विल सी व्हाट आर द कॉमन टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू फिशरी, वहां से भी क्वेश्चंस दे आस्क। एंड लास्टली इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इज वेरी टेक्निकल इन फिशरी, so I don't think they will ask from biotechnology. Certain 2-3 points are there, we will try to discuss in the last. जहाँ से हो सकता है मे भी क्वेश्चन आए, but I don't think they will ask because it's too technical biotechnology. ठीक है, ये सारे एरियाज हैं जहां आपको रिवॉल्व करना है। ठीक है, जहां आपको ट्राई करना है कि एरियाज को कवर करने हैं पढ़ाई के लिए, इधर उधर नहीं जाना है। तो यही एरिया सिलेबस में दिया गया जो हमने अभी डिस्कस किया है। ठीक है, नाउ इफ यू सी द प्रीवियस सम ऑफ द क्वेश्चंस आई हैव, they have asked from the fish movement. It is a question related to terminology. कौन सा क्वेश्चन था वो? कैटाड्रोमस एंड एनाड्रोमस जो मूवमेंट होते हैं फिश के, वहां से एक क्वेश्चन पूछा गया। डिफरेंट फार्मिंग सिस्टम से आपके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, जितने भी नाबार्ड के मॉडल्स है वहां से क्वेश्चन आते हैं। प्लस एक एक्सटेंसिव, इंटेंसिव एंड सेमी इंटेंसिव वाला जो सिस्टम होता है वहां से क्वेश्चन आते हैं। ग्रो आउट पीरियड, ये भी फिर नाबार्ड से पूछते हैं या फिर प्रॉन या फिर श्रिम्प के कल्टीवेशन से पूछते हैं, प्रॉन और श्रिम्प। ग्रो आउट पीरियड या 2 या 3 साल इस एरिया से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ग्रो आउट पीरियड किसी के भी पूछ लेते हो। हाईएस्ट प्रोटीन, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था, क्योंकि वर्ल्ड ट्यूना डे हम सेलिब्रेट करते हैं। व्हेन वी सेलिब्रेट द वर्ल्ड ट्यूना डे, व्हाट इज द डेट? 2 में, आई थिंक, नॉट 3 में, 2 में। ठीक है, तो वहां से ये क्वेश्चन था। जब भी आप जनरल पढ़ते हो वहां लिखा रहता है कि इसमें प्रोटीन कंटेंट काफी ज्यादा होता है, तो इसके लिए आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो 3rd क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड रिलेटेड इंस्टीट्यूट रिलेटेड, उन्होंने CIFRI का पूछा है लोकेशन। तो उसी तरह हो सकते हैं 7-8 इंस्टीट्यूट है फिशरी के इंपॉर्टेंट, वो आपको देखना, वहां से पूछ सकते हैं। टूल बेस्ड, क्योंकि टूल बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, जो हम फिशिंग गियर्स यूज करते हैं, तो उन्होंने डग आउट कैनो से साथ पूछा था क्वेश्चन कि किस स्टेट में यूज होते हैं। तो ये वाला हम थोड़ा सा पार्ट देख लेंगे। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फिश इज अगेन इंपॉर्टेंट। क्लासिफिकेशन थोड़ा सा आप देखोगे तभी आपको आइडिया होगा कि फिशिंग में कौन कौन से एरियाज कहाँ से क्या आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। तो ब्रीथिंग फिश से उन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा है क्लासिफिकेशन में, जो हम जनरली पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, थोड़ा सा मैं फिशरी के बारे में थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे हम क्लासिफाई करते हैं, ताकि थोड़ा सा आपको एक आइडिया डेवलप हो जाए। देखो, जब भी हम फिशरी की बात करते हैं, फिशेस की, तो इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं? फिश आर वर्टिब्रेट्स, ये तो पता होगा आप लोगों को। इसको 2 डिविजन्स में बांटा जाता है। ठीक है, 2 डिविजन्स में हम इसको बांट सकते हैं, दैट इज जॉलेस फिश, जिनके जॉ नहीं होता है, जिनके जॉ होते हैं। ठीक है, इनको बोला जाता है अग्नाथा, इनको बोला जाता है ग्नाथोस्टोमाटा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो नीचे आएगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये याद नहीं है, नो प्रॉब्लम। जब हम जॉ वाले फिश की बात करते हैं तो इसमें 2 क्लासिफिकेशन बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। एक आता है कॉन्ड्रिकाइथिस, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, एक आता है कॉन्ड्रिकाइथिस और एक आता है आपका बोनी फिशेस, ऑस्टियोकाइथिस बोलते हैं जिसको। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑड वन आउट आ सकते हैं। जो कॉन्ड्रिकाइथिस होते हैं उनका जो वर्टिब्रेट होता है बेसिक, उनका स्ट्रक्चर कार्टिलेज से बना होता है। इनका स्ट्रक्चर जो कि बोनी है, बोनी फिशेस होता है। तो बस आपको याद रखना है, कॉन्ड्रिकाइथिस में 2 ही एग्जांपल है जो आपको याद रखना, शार्क एंड रेज आर कॉन्ड्रिकाइथिस और कार्टिलेजिनियस फिश। इसको छोड़ के इधर सब बोनी फिश में आएंगे। तो ये सब चीजें आपको याद नहीं रखनी है, बेसिक ये आपको याद रखना है कि कॉन्ड्रिकाइथिस में कौन से फिश आते हैं। जो मेजर है शार्क एंड रे जो है
वो कार्टिलेजिनियस फिश है, दे आर कॉन्ड्रिकाथिस, रेस्ट ऑफ ऑल विल कम इन दी बोनी फिश। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आता है वो आपका आता है फ्रेश एंड सॉल्टी वाटर, फ्रेश वाटर एंड सॉल्टी वाटर। if you people can name some of the important fresh water fishes, fresh water and salty water दोनों आपको याद होना चाहिए। कॉमन एग्जांपल्स, नॉट डिफिकल्ट वंस। यस, जितने कार्प्स होते हैं याद रखिएगा, जितने कार्प्स होते हैं वो फ्रेश वाटर होते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट गोल्ड फिश का एक एग्जांपल याद रखिएगा, आते हैं, ठीक है। एंड सॉल्टी में जितने मरीन फिशेस होते हैं वो आपके सॉल्टी एरिया में होते हैं, ठीक है। अब यहां से और एक पॉपुलर क्वेश्चन है, मैं दे देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू फिश करके एक क्वेश्चन बहुत से टाइम पूछा जाता है एग्जांपल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू, इज अ ट्रू फिश। और उसमें मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल रहता है, जैसे मैं आपको दे रहा हूँ, क्रे फिश, जेली फिश, स्टार फिश, ठीक है, एंड डॉग फिश। तो याद रखिएगा डॉग फिश एक ट्रू फिश है, बाकी इनको छोड़ के कोई भी, जैसे जेली फिश हो गया, क्रे फिश हो गया, दिस आर नॉट ट्रू फिश। तो डॉग फिश का एग्जांपल आपको याद रखना है, व्हाट दे जनरली आस्क इन एग्जामिनेशन। तो फिश जो होते हैं याद रखिएगा, बायोलॉजिकली हाउ डू वी डिफाइन द फिश। फिश के पास गिल होता है, दे हैव द गिल एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन, दे हैव द बैकबोन ऑफ बोन्स एंड दे हैव लोब्स इन द फॉर्म ऑफ फिन्स, जिससे स्विम करते हैं, फ्लोट करते हैं। तो ये बायोलॉजी डिफाइन करता है फिश को। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर था जो हमने फिशेस के बारे में देखा कि क्या क्या क्लासेस होते हैं, बोन वाले फिश होते हैं, कार्टिलेजिनियस फिश होते हैं, कौन से ट्रू फिश होते हैं, कौन से फॉल्स फिश होते हैं, एंड कौन से फ्रेश वाटर फिश होते हैं, कौन से सॉल्टी वाटर फिश होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। दिस इज द बेसिक जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ फिश जो आपको दिमाग में याद रखना है, ठीक है। अब हम आते हैं, जो मैंने कुछ एडिशंस किए हैं, अभी वर्ल्ड रिपोर्ट आया हुआ है FAO का, राइट, इसको आप थोड़ा सा देख लेना, याद रख लेना। दैट इज सोफिया रिपोर्ट, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2020 बाय FAO। तो इसमें जो रैंकिंग्स दिए गए हैं उसको थोड़ा सा आप देख लो। टॉप मरीन कैप्चर फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री, इसमें इंडिया टॉप 3 में कहीं भी नहीं है, इंडिया का रैंक 6 है, याद रखिएगा। मरीन, मरीन मीन सॉल्टी, ओशन वाले फिश की बात हो रही है यहाँ पे इंडिया का रैंक 6 है। टॉप मेजर इनलैंड कैप्चर, या अंदर वाली बात हो गई, जितने रिवर्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया, वहां पे कर रहे हैं, तो इंडिया का यहाँ पे रैंक 2nd है। यहाँ पे कितना है, 6th है, एकदम क्लियर रहिएगा इन सारी चीजों में। टॉप मरीन कैप्चर स्पीसीज, कौन सा स्पीसीज सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड कैप्चर किया जाता है, क्योंकि आपने देखा कि स्पीसीज वाइज पहले भी इन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा है, और ये तो FAO का भी रिसेंट न्यूज आया हुआ है, राइट। तो आपको याद रखना है कि कौन सा है ये स्पीसीज, जो भी है, एनकोवेटा या समथिंग, एंड शॉन पॉलक के नाम से नेक्स्ट आप याद रख सकते हैं, अलास्का पॉलस। वर्ल्ड वाइड ये दोनों स्पीसीज सबसे ज्यादा मरीन में फेमस है। इंडिया के लिए अभी हम आएंगे, कोई बता सकते हैं इंडिया के लिए सबसे ज्यादा लैंडिंग स्पीसीज कौन सा है? न्यूज़पेपर में आया हुआ था ना भी, हिंदू में कुछ दिन पहले। नॉट डॉग फिश, नॉट फ्रोजन श्रिम्प, फ्रोजन श्रिम्प 3rd नंबर पे आई थिंक आता है, जो कि सबसे ज्यादा उस फिश को हम यूज नहीं करते हैं फॉर ईटिंग, दैट इज यूज्ड बेसिकली फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स, ठीक है। वो आगे जाके हम देखते हैं क्या है, सम रेड टूथ सम करके है। गोल्ड फिश इज अनदर थिंग, somebody from महाराष्ट्र इन्होंने अभी डिस्कवर किया था, दैट इज फॉर बायोमेडिकल पर्पस। गोल्ड फिश अलग है, ठीक है। चलिए उसको हम आगे देखेंगे, बट वर्ल्ड वाइड जो सबसे ज्यादा एबिलिटी है वो इस फिश की है, ठीक है, याद रखिएगा। एंड एक्वाकल्चर स्पीसीज की अगर हम बात करें, मतलब सबको मिक्सअप कर दे, जो इनलैंड भी हो रहा है, बाहर भी हो रहा है, तो ग्रास कार्प सबसे ज्यादा, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फेमस है ये। टॉप 5 शेल फिश, देखिए अगेन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, शेल फिश के अंदर क्या क्या आते हैं, व्हाट डज दिस टर्म शेल फिश इंक्लूड्स, दैट इंक्लूड्स योर व्हाइट लेग श्रिम्प। देखो ये TNU में दिया हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। शेल फिश इंक्लूड्स योर व्हाइट लेग श्रिम्प, पीनस वन्नामी, ठीक है, रेड स्वाम्प क्रॉप फिश, ठीक है, जायंट टाइगर प्रॉन, ये भी TNU में दिया हुआ है। तो यू मस्ट रिमेंबर कि शेल फिश इंक्लूड क्या क्या होते हैं, बस इतना आपको ब्रीफ आइडिया रखना है। ऑड वन आउट आ सकता है, या फिर आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ शेल फिश। तो वहां पे आपको याद रखना है, जितने श्रिम्प होते हैं, जितने प्रॉन्स होते हैं, जिनके ऊपर एक कवरिंग है, एक शेल है, दोज आर कॉल्ड एज शेल फिश। टॉप एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की जब हम बात करते हैं तो चाइना, नॉर्वे, वियतनाम ये है। और डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज की जब हम डॉक्यूमेंट्स को पढ़ेंगे तो इंडिया का इसमें 4th रैंक आ गया, 4th, ठीक है, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में। टॉप इंपोर्टर इज USA वर्ल्ड ओवर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेक अवेज हैं फ्रॉम सोफिया रिपोर्ट जो FAO ने पब्लिश किया है रिलेटेड टू फिशरीज।
आपको इसमें याद रखना। नेशनल जीवीए की बात करते हैं तो ये आप लोगों का रटा रटाया चीज है, यू नो दैट कंट्रीब्यूशन इज 1.2%, ठीक है। एंड एग्रीकल्चर की जीवीए की बात करें तो यू मस्ट रिमेंबर बोथ द वैल्यूज, क्वेश्चन को आप ठीक है ध्यान से पढ़ना, रीड केयरफुली द क्वेश्चन, दे आर आस्किंग इन द करंट प्राइसेस और they are asking in the constant prices. The contribution of fishery in agriculture GVA for current prices is 7.28%. This I think most of you people know. And in terms of constant prices, it is 6.84%. Both are important. ये किस part of the syllabus से this topic is important? This topic is important from your importance of fishery, जो कि syllabus में दिया गया. Importance of fishery to Indian economy. शेयर एंड एक्सपोर्ट आउट ऑफ ऑल एक्सपोर्ट्स इन इंडिया, इंडिया से जितने हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें फिशरी का एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, दैट इज 17% इट सेज, ठीक है 17% इट सेज। क्वांटिटी वाइज देखो अनदर इंपॉर्टेंट, ये सोफिया रिपोर्ट में ये मेंशन किया हुआ है, क्वांटिटी वाइज जो हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को, वैल्यू वाइज सबसे ज्यादा करते हैं यूएसए को, एंड आइटम वाइज जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है इंडिया से दैट इज फ्रोजन श्रिम्प। तो ऑल द थ्री आर इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद रखिएगा। क्वांटिटी वाइज इट्स चाइना, सबसे ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं, वैल्यू वाइज सबसे ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए को, एंड विथ आइटम वाइज द फ्रोजन श्रिम्प इज एक्सपोर्टेड बीइंग मैक्सिमम। जितने भी स्पीसीज है सबसे ज्यादा हम किसको करते हैं, वी एक्सपोर्ट टू फ्रोजन श्रिम्प को हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। Now top 5 consuming states, तो यहाँ पे हो सकता है if you people don't know you will mark the West Bengal as answer। तो कंज्यूमिंग स्टेट्स की अगर हम बात करें इंडिया में तो त्रिपुरा रैंक्स फर्स्ट, यहाँ पे सबसे ज्यादा पर कैपिटा कंजम्पशन है फिश का। वेस्ट बंगाल मत करके आना, इसका डेटा ही अवेलेबल नहीं है। सो ऑफिशियल रिपोर्ट सेज इट्स त्रिपुरा इज फर्स्ट, केरला इज सेकंड, मणिपुर इज थर्ड। तो ये तीनों स्टेट्स हैं जो कंज्यूमिंग टॉप 5 कंज्यूमिंग टॉप 3 अब बोल लो यहाँ पे जो मैंने दिया है कंज्यूमिंग स्टेट्स। नाउ फिशिंग एरियाज की बात करें तो एरिया ऑफ द कंट्री तो सबको पता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं रिलेटेड टू फिशरीज, ये बहुत पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। और जनरल अवेयरनेस के लिए दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट इज लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन इज इंडिया का 8118 किलोमीटर एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इज 2.02 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ नॉट सो इंपॉर्टेंट, बस इन दोनों को आप याद रखिएगा कि EEZ हमारे पास कितने हैं, ठीक है, जहां पे एक्टिविटीज रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, एंड लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन हमारे पास कितने हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नाउ स्टेट विथ हाईएस्ट मरीन प्रोडक्शन 2019 अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो गो फॉर द गुजरात, बिकॉज ऑफिशियल रिपोर्ट जो आया हुआ है उसमें 2019 का जिक्र किया गया, बट इफ यू पीपल रीड न्यूज़पेपर केयरफुली, हिंदू में 2020 का भी दिया हुआ है, दैट इज दे आर सेइंग 2020 में तमिलनाडु हैज ओवरटेकन। तो केयरफुली देखिएगा एग्जामिनेशन में कहां से क्वेश्चन पूछा है, दे आर आस्किंग फॉर 2019 और 2020। ऑफिशियल रिपोर्ट्स जहां भी पढ़ोगे, PIB वगैरह जहां भी पढ़ोगे तो 2019 ही देखोगे, तो चांसेस है कि क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है। यू पीपल सी कि विच ईयर दे आर आस्किंग, इफ दे आस्क फॉर 2019 गो फॉर गुजरात, मरीन प्रोडक्शन की बात हो रही है, ठीक है, स्टेट विथ हाईएस्ट मरीन प्रोडक्शन, बट इफ दे आस्क फॉर 2020 देन तमिलनाडु विल बी द राइट आंसर। हाईएस्ट लैंडिंग परसेंट इंक्रीज, मतलब कि पिछले साल था उसके कंपैरिजन में, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस ईयर से इस ईयर को कंपैरिजन कर रहे हैं, दैट इज 2019, तो हाईएस्ट लैंडिंग जो है 2020 में इज मैक्सिमम फॉर वेस्ट बंगाल। एंड व्हाट वी आर टॉकिंग, जस्ट हमने अभी बात किया कि एंकोवेटा जो है हाईएस्ट स्पीसीज है, मरीन स्पीसीज वर्ल्ड वाइड, मरीन स्पीसीज एंकोवेटा था, उसके बाद कुछ पॉलक था, राइट। बट इंडिया की इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, व्हिच मरीन स्पीसीज वी हैव हार्वेस्टेड द मैक्सिमम, तो राइट आंसर इज रेड टूथ ट्रिगर करके कोई फिश है, एंड नेक्स्ट इज रिबन फिश। ये दोनों की हार्वेस्टिंग हमने सबसे ज्यादा की है, ये आपको याद रखना, ठीक है। तो ये 2019 का डेटा ऑफिशियल रिपोर्ट से, जहां पे भी आपको दिखेगा मैक्सिमम कहां जा रहा है, मैक्सिमम गुजरात में 7.01, बट नाउ तमिलनाडु हैज ओवरटेकन, तो तमिलनाडु को 2020 में फर्स्ट स्पॉट जाता है, तो थोड़ा केयरफुल रहना है क्वेश्चन आया तो। अब आती है बात, नाउ इट कम्स टू इनलैंड प्रोडक्शन ऑफ फिशेस। तो इनलैंड प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश इज द टॉप वन, ठीक है, नेक्स्ट इज वेस्ट बंगाल, मतलब कि ओशन की बात नहीं कर रहे, अंदर अंदर के रिवर पॉन्ड ये सब सारी बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम द फर्स्ट पोजीशन गोज टू आंध्र प्रदेश, ठीक है, नेक्स्ट इज वेस्ट बंगाल। तो फिगर में क्लियरली आप देख सकते हैं बाद में कंपैरिजन करके। टोटल की बात कर ले, क्योंकि आंध्र प्रदेश में इनलैंड फिशरी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, तो दूसरे स्टेट के कंपैरिजन में बहुत आगे है आंध्र प्रदेश। तो टोटल जब हम ऐड करते हैं तो टोटल की अगर बात पूछ लिया जाए फिशरी प्रोडक्शन टोटल, दैट इज मरीन प्लस इनलैंड, द फर्स्ट रैंक विल गो टू AP, आंध्र प्रदेश, ठीक है।
मेजर टाइप क्या क्या है इंडिया में जो फिशिंग होते हैं, सबसे ज्यादा इंडियन मेजर कार्प्स, फिर एक्सोटिक कार्प्स, फिर माइनर कार्प्स, कैट फिशेस एंड लास्टली मरल्स। ठीक है, तीनों को आपको जिस सीक्वेंस है उसको याद रखना है। सबसे देखो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आपको याद रखना है, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इंडियन मेजर कार्प्स में आपको पता होगा, वो हम आगे डिस्कस करते हैं कौन कौन से स्पीसीज होते हैं। अच्छा, दो टर्म्स आते हैं, दैट इज यहाँ पे आप देख रहे हो मेजर कार्प, हमेशा पढ़ोगे तो मेजर कार्प एंड माइनर कार्प। Is there any difference between both the terms, major carp and minor carp? कोई डिफरेंस है दोनों में? किसको हम मेजर बोलते हैं, किसको माइनर बोलते हैं? इट इज बेस्ड ऑन द साइज, इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एग्स दे प्रोड्यूस। तो सब में मेजर मेजर में ज्यादा होगा, तो साइज वाला क्राइटेरिया वो आपको याद रखना है। यहाँ पे 90 टू 120 सेंटीमीटर जो साइज होता है, वी कॉल इट एज मेजर कार्प्स, बड़े साइज के होते हैं, दैट्स व्हाई मेजर। एंड इट इज अराउंड 30 सेंटीमीटर, स्मॉल साइज के होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं माइनर कार्प्स। इसको याद रखिए, बेसिक डिफरेंस है मेजर एंड माइनर कार्प्स में। नाउ दिस क्वेश्चन इज समवट, ये डेटा थोड़ा सा अलग है, इसलिए याद रखना मेजर फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट। फिश के जो सीड्स होते हैं जो कि कल्चरिंग में बाद में यूज होते हैं, ठीक है, जिससे फिश डेवलप होते हैं, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है झारखंड में। ठीक है, इट इज नॉट आंध्र प्रदेश, ठीक है, इट इज नॉट तमिलनाडु, इट इज नॉट केरला, बट झारखंड में सबसे ज्यादा फिश सीड प्रोडक्शन हो रहा है। एंड नाबार्ड भी काफी ज्यादा काम कर रही है झारखंड एंड बिहार में रिलेटेड टू फिशरी। ठीक है, जब आप नाबार्ड के वेबसाइट में देखना तो बहुत सारे उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं स्पेसिफिकली इन झारखंड एंड बिहार। यूजेज की टर्म में बात करें तो फ्रेश मार्केट में सबसे ज्यादा यूज है, याद रखना 90% वट एवर द फिश इज हार्वेस्टेड दैट इज यूज्ड इन द फ्रेश मार्केट। नेक्स्ट कम द फ्रोजन, नेक्स्ट कम द क्यूरिंग एंड लास्ट कम द कैनिंग। तो कैनिंग सबसे कम है इंडिया में, प्रचलन जो है कैनिंग का सबसे कम है, सबसे ज्यादा 90% हम बेच देते हैं फ्रेश। देन फ्रोजन एज अ फॉर्म ऑफ फ्रोजन फिश बेचते हैं उसको, क्यूरिंग क्योर्ड फिश, एंड लास्टली इज द कैनिंग, बिकॉज आप जानते हैं इट इज कैनिंग इज पॉपुलर इन द यूरोपियन कंट्रीज, नॉट इन इंडिया। तो कैनिंग इज लीस्ट प्रिफर्ड ओवर इंडिया। ये कुछ स्टैट्स थे जो हमने देखा। सो आई थिंक बहुत सारे आपको क्लैरिटी आ गई होगी, बहुत सारे नए स्टैट्स मिले होंगे, एंड ऑल आर इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑल रिसेंट है और रिसेंट रिपोर्ट्स लिए गए हैं। ठीक है, पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो ये देख लेना, क्योंकि फिशिंग कम्युनिटी के लिए गवर्नमेंट काफी काम कर रही है अभी, पर्टिकुलरली फार्मर, फिशर फार्मर। ठीक है, तो 82% जो है वो इनलैंड फार्मर है। डोंट कंफ्यूज कि हमारे तीनों तरफ ओशन है तो ओशनिक फार्मर्स ज्यादा हैं। ठीक है, ओनली 18% है मरीन फार्मर और 82% जो है इनलैंड फार्मर्स है। अगर टोटल बात करें इंडिया में कितने फिशरमैन है, हमेशा जब भी फिशिंग स्कीम पढ़ोगे तो हमेशा गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में लिखा रहता है व्हाट इज, किसी को कोई रफ आइडिया 82% ऑफ व्हाट, कितने फिशरमैन है हमारे कंट्रीज में? इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रहा हूँ, 2.80 करोड़ से कुछ, याद रखिएगा। ठीक है, कोस्टल लेंथ की बात करें तो सबसे ज्यादा कोस्टल लेंथ अंडमान में है। अगर यूनियन टेरिटरी नहीं आता तो इट इज इन गुजरात, आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, गुजरात, एंड नेक्स्ट इज तमिलनाडु, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रैकिश वाटर की बात करें तो सबसे ज्यादा ब्रैकिश वाटर उड़ीसा में है। पहले जब हम पढ़ते थे तो कुछ और डाटा था, बट अभी उड़ीसा में है। आई हैव टेकन द डेटा, वहां पे आप कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वेस्ट बंगाल एंड थर्ड इज गुजरात, ब्रैकिश वाटर। तो ब्रैकिश वाटर तो पता होगा ना आपको क्या होता है, फ्रेश वाटर। ठीक है, यहाँ पे ओशन में हो गया सॉल्टी वाटर, तो इन दोनों के बीच का जो वाटर है जहाँ पे फ्रेश वाटर एंड सॉल्टी वाटर मीट, दैट इज एस्चुरी, उसको हम बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ये उड़ीसा में है। यस, सैलिनिटी मोर देन, वैभव सिंह, सैलिनिटी मोर देन फ्रेश, लेस देन मनी, वेरी गुड, यही है, मतलब बीच का होता है, दोनों के बीच का हम बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। ठीक है, यहाँ पे अगेन देखो मरीन रिसोर्सेज की जब हम बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मरीन रिसोर्सेज, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। तो यहाँ से क्वेश्चन दे कैन फ्रेम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कन्वेंशनल रिसोर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मरीन कन्वेंशनल रिसोर्स। तो कन्वेंशनल में डोमेर्सल आ जाते हैं, पेलाजिक आ जाते हैं, ठीक है, ये जो हम जनरली पढ़ते हैं। बट नॉन कन्वेंशनल में जैसे जेलीफिश हो गया, स्क्विड्स हो गया, डीप सी जितने भी हम करते हैं, बेंथिक जितने भी होते हैं, वो सारे नॉन कन्वेंशनल में आते हैं। ये आपको क्लासिफिकेशन याद रखना, परसेंटेज है नॉट सो इम्पोर्टेंट। तो ये एक ओवरऑल था जिसमें हमने देखा व्यू में व्हाट आर ऑल द डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू फिशरी, कौन सा स्टेट है, कहाँ है, क्या है, नहीं है, इंडिया का पोजीशंस कितने हैं। एक्वा कल्चर की जब हम बात करते हैं तो एक्वा कल्चर में हर जगह इंडिया का रैंक सेकंड लिखा हुआ है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो आपको याद रखना है, बाद में रिवाइज करके और एक बार देख लेना, डॉक्यूमेंट में शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, दैट इज इम्पोर्टेंट।
ठीक है, तो आई थिंक दिस डेटाज वेर न्यू और यू पीपल हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑल दिस थिंग्स. ओके ठीक है, तो थोड़ा सा कवर कर लेना, लेटेस्ट डेटा है तो इट इज इम्पोर्टेंट टू कवर ऑल दिस थिंग. चलो अब हम बढ़ते हैं स्टैटिक की ओर. ये हमारा पहला सेक्शन खत्म हो गया, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ फिशरी, जो भी है नेशनल इंपॉर्टेंस या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या, उस सेक्शन में ये सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ती है, दैट इज गिवन इन द सिलेबस. ठीक है, अब हम आते हैं स्टैटिक पोर्शन में कि फिशरीज को जैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. फिशरीज इज फिन फिशरी एंड नॉन फिन फिशरी. तो यहाँ से एक बेसिक क्वेश्चन दे कैन आस्क, दैट इज ये ट्रू फिशिंग बोलते हैं इसको, राइट, फिन फिशरीज. तो अब फिर फिन फिशरीज के अंदर दो आ जाते हैं, कैप्चर एंड कल्चर. ठीक है, ये दोनों आ जाते हैं. कैप्चर तीनों एरियाज में हो सकता है, कल्चर भी तीनों एरियाज में होता है, दैट इज मरीन, इनलैंड एंड फ्रेश, ब्रैकिश, केज एंड ऑर्नामेंटल. इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जो कि बहुत जनरल है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है. बस एक पॉइंट आपको याद रखना है कि फिन फिशरीज के कल्टिवेशन को हम बोलते हैं ट्रू फिश के कल्टीवेशन को हम बोलते हैं फिन फिशरी. ये आपको पॉइंट याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. नॉन फिशरी में ऑल थिंग्स विल बी इंक्लूडेड, सीवीड, फ्रॉग, प्रॉन, क्रैब्स, एवरीथिंग कम्स अंडर दिस. ठीक है, जाओ यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विद द डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ न्यू कल्चर सिस्टम फार्मिंग फॉर वाइड एंड क्रैब्स, और ये सब हम सारा चीज इंक्लूड कर रहे हैं जो कि एक्वाकल्चर में हम लेते हैं. ठीक है, तो जब भी अब कल्चर करने लोगोगे, देखो जब आप स्टार्टिंग किया था जब ने लेक्चर से, तो मैंने पूछा था कि फिशरी और एक्वाकल्चर में क्या डिफरेंशिएट होता है, तो मेनी पीपल रिप्लाइड कि मॉलस्क, फ्रॉग, ये सब जो होता है हम एक्वाकल्चर में स्पेसिफिकली पढ़ते हैं. ठीक है, तो उस हिसाब से आप इन चीजों को डिफरेंशिएट करके देखना कि एक्वाकल्चर में जब भी इनको हम कल्चर करके पढ़ेंगे तब ये आते हैं. वाइल्ड में अगर करोगे तब इसको हम एक्वाकल्चर में इंक्लूड नहीं करेंगे. जब भी आप कल्चर करोगे, जब भी आप कंट्रोल्ड कंडीशन में लोगे इन सारी चीजों को, तब हम उनको एक्वाकल्चर बोलेंगे. ठीक है, मरीन फिशरी में देखो ये तीनों जोन्स वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, पेलाजिक, डिमर्सल एंड डीप सी. ठीक है, तो मैक्सिमम जो भी हमने ग्राफ से देखा, जो गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स में भी दिया हुआ है, देखो सबसे ज्यादा हमारे पास जो फिशेस आ रहे हैं इस जोन से आ रहे हैं, 48.98% इट इज कमिंग फ्रॉम दी पेलाजिक. पेलाजिक जो कि मेन लैंड बोला जाता है, मेन लैंड, इससे सबसे ज्यादा आ रहे हैं. आप देख लेना यहाँ पे स्टैट्स भी दिया हुआ है, पेलाजिक से सबसे ज्यादा हम कर रहे हैं. इट इज वन ऑफ द कन्वेंशनल रिसोर्स. ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है. तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों को बेसिकली समझ लेना. ये डिस्टेंस के हिसाब से, शेल्फ से कितने दूरी पे है, ठीक है, उसके हिसाब से. डेमर्सल, एज द नेम इंडिकेट्स, डेमर्सल ये बॉटम ऑफ द फिश, लेक्स या फिर जो भी होगा, मान लो ये शेल्फ है, यहाँ जो नियरेस्ट एरिया में, दिस इज कॉल्ड पेलाजिक. बट जितने डिप्थ गहराई पे आप जाओगे, बॉटम के पास जितने होंगे उसको हम बोलते हैं डेमर्सल या फिर डीप सी. सबसे ज्यादा जो डीप होगा उसको डीप होंगे, इन दोनों के बीच में होगा वो होगा डेमर्सल. तो यहां से जो है इस एरिया से देखो क्वेश्चन आपको आएंगे. डेमर्सल इज क्लियर. यहाँ पे डीप सी में जब आप जाओगे, यहाँ पे हाँ ये पॉइंट है कि कितने कितने मीटर्स पे ये क्लासिफाई किया है. ठीक है, ये थोड़ा सा आप देख लेना कि बैथीपेलाजिक क्या है, एबिजोपेलाजिक क्या है, मेसोपेलाजिक क्या है, इन एरियाज को आपको थोड़ा सा देख लेना है. तो बैथीपेलाजिक एंड एबिजोपेलाजिक आर एफोटिक, याद रखना. बैथी एंड एबिसो जो है वहां लाइट नहीं पहुंचती है, तो दीज आर कॉल्ड एफोटिक. ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है. एंड एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट, इन एग्जांपल्स को थोड़ा सा आप देख लेना कि डीप सी में कौन कौन से आते हैं. ठीक है, जैसे ब्रिजल हो गया, वाइपर फिश है, फ्लैशलाइट फिश है, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ डीप सी फिशेस. तो क्लासिफिकेशन, एज आई एम ऑलवेज सेइंग, क्लासिफिकेशन से एक दो क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो थोड़ा क्लासिफिकेशन और उसके एग्जांपल्स को थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिएगा. रिवराइन सिस्टम से हम बढ़ते हैं रिवर सिस्टम से. तो रिवर सिस्टम में देखो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है, जो गंगा रिवर सिस्टम है वहां पे कौन कौन से फिशेज हैं, दैट इज मेजर कार्प्स, माइनर कार्प्स, कैट फिशेज, मरल्स, फ्रेश एल्स एंड फिशिंग गियरिंग नेट्स कौन कौन सी यूज होते हैं, ये यहाँ पे है. तो जब हम मेजर कार्प्स की बात करते हैं तो मेजर कार्प्स में तीन आते हैं, आपको याद होगा, दैट इज रोहू, कतला एंड मृगल. ठीक है, ये तीनों रिप्रेजेंट. तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कार्प. तो हु और शी इज फ्रॉम बायोलॉजी बैकग्राउंड, उनको ये अच्छे से पता है कि आरएमसी होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर नहीं है आप, तो ये आप याद रख सकते हैं कि मेजर कार्प में यही मेजर तीन एग्जांपल्स हैं, रोहू, कतला एंड मृगल, आपको याद रखना है.
माइनर कार्ब्स की बात करें तो यहाँ पे आप डिफिकल्ट है, आई डोंट थिंक दे विल गिव सच साइंटिफिक नेम, आपको याद रखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, एक एक बार देख लेना। कैट फिशेस दे हैव ऑलरेडी गिवन, ठीक है। देखो कैट फिश एंड मिरल्स आर दोनों ऐसे फिशेस हैं, दे हैव एयर ब्रीदिंग करते हैं, एंड ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो एज पर ऑप्शन यू हैव टू सेलेक्ट कैट फिशेस एंड मिरल्स। ये चन्ना स्पीसीज जो है, चन्ना स्ट्राइटस, they have asked which of the following fish is air breathing fish, तो murrels and cat fishes both can breathe, ठीक है, एयर में ब्रीथ कर सकते हैं। तो दिस टू आर एग्जांपल, आपको याद रखना है कि कौन कौन से स्पीसीज कैट की फिश के अंदर आ रहे हैं, कौन कौन से मिरल्स के अंदर आ रहे हैं। देखो और एक चीज मैं बताना भूल गया, ट्यूना से एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ट्यूना फिश का, जितने भी एम्बियंट टेम्परेचर होगा उससे ये 5 से 12 डिग्री सेल्सियस अपने बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा के रखते हैं ट्यूना फिश। ये सबसे इंपॉर्टेंट एंड एग्जांपल है ट्यूना फिश के लिए, या कैरेक्टर बोल रहे ट्यूना फिश का है, जो बेसिकली हर जगह देखा जाता है। तो इसको आप याद रखना कि 5 से 12 ऐसा एक फिश है जो कि अपने बॉडी टेम्परेचर को सराउंडिंग से 5 से 12 डिग्री सेल्सियस तक एलिवेट करके रख सकता है। गोदावरी की बात करें तो गोदावरी सिस्टम में मोस्टली इट इज कार्ब्स, कैट फिशेस एंड प्रॉन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, नॉट सो इम्पोर्टेंट। हाँ, स्मॉल रिजर्वायर्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, इफ इट्स एरिया हैज लेस देन 1000 हेक्टेयर से कम हो तो उसको हम बोलते हैं स्मॉल रिजर्वायर्स। दो पैरामीटर्स है, दैट इज मॉर्फोएडाफिक इंडेक्स एंड स्टॉकिंग रेट। दोनों को आप याद रखिएगा कि इसको दोनों को हम स्टॉकिंग डेंसिटी निकालने के लिए करते हैं। ये फॉर्मूला वगैरह आपके लिए काम का नहीं है, दे वोंट आस्क। फिशरी के लिए अलग से अगर वैकेंसीज आती हैं तो देयर इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, बट एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स और फॉर जनरलिस्ट स्टूडेंट आपके लिए फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट नहीं है। ओनली आप याद रखना कि दे कैन आस्क मॉर्फोएडाफिक इंडेक्स किस लिए होता है, तो ये स्टॉकिंग डेंसिटी निकालने के लिए हम यूज करते हैं। इतना आपको बस याद रखना है, दिस ऑल थिंग्स यू डिड नॉट नीड टू रिमेंबर, नो नीड फॉर दैट। स्टडीज की बात होगी, देखो ये थोड़ा सा ओल्ड डेटा है 2014-15 का, ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में मास्टर नोट्स में लिया था कि कहाँ से किस स्टेट में सबसे ज्यादा ब्लैकिश वाटर है, ऑल दिस थिंग्स ये हमने देखा था। बट जो नया डेटा है वो मैंने यहाँ पे दे दिया है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा ब्लैकिश वाटर आपको दिख रहा होगा एज पर ओल्ड डेटा, इट इज फॉर योर गुजरात, आई थिंक गुजरात। वेस्ट बंगाल में आपको सबसे मैक्सिमम दिख रहा होगा एरिया। बट इफ यू गो विद द न्यू स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे उड़ीसा में इन्होंने बहुत से एरियाज को इंक्लूड किया है। नाउ उड़ीसा हैज द मैक्सिमम ब्लैकिश वाटर, जितने भी चिल्का लेक वगैरह है सारे एरियाज को दे हैव इंक्लूडेड, एंड उड़ीसा हैज द मैक्सिमम ब्लैकिश। 1920 का रिपोर्ट है, लेटेस्ट है, तो उड़ीसा का मैक्सिमम ब्लैकिश वाटर एरिया है, याद रखिएगा, ठीक है। दिस डेटा हैज चेंज्ड, ये डेटा काफी ओल्ड है, 14-15 का है, एंड दिस इज द न्यू 1920 का ये डेटा है। तो ब्लैकिश वाटर इसको आप पॉज करके देख लेना, कहाँ कौन सा ज्यादा है, रिवर्स कहाँ ज्यादा है, ब्लैकिश वाटर कहाँ ज्यादा है, ये देख लेना। ब्लैकिश इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। नाउ ये सिस्टम्स ऑफ फिशरी जो हम इनपुट के हिसाब से यूज करते हैं वो आपको देखना है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ से आ चुका है, इस एरिया से क्वेश्चन, तो इसके क्लासिफिकेशन को एक चार्ट वाइज दे दिया यहाँ पे, बहुत ही अच्छा चार्ट दिया हुआ है। तो इसको थोड़ा सा देख लेना कि एक्सटेंसिव में एरिया वाइज कितना है, मॉडिफाइड एक्सटेंसिव, सेमी इंटेंसिव, इंटेंसिव और सुपर इंटेंसिव, एरिया वाइज क्लासिफिकेशन है। वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट है ये, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है एंड वी एक्सपेक्ट कि फ्यूचर में भी आ सकता है। तो इस चार्ट को थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। पॉन्ड साइज इज इंपॉर्टेंट है, स्टॉकिंग डेंसिटी इज इंपॉर्टेंट है, वाटर डेप्थ वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। हार्वेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट, कितना हम हार्वेस्ट कर रहे हैं, दिस प्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट। ये 3 डेटा एटलीस्ट आप देख लेना, पॉन्ड साइज, स्टॉकिंग डेंसिटी एंड प्रोडक्शन, ठीक है। किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है कि 500 kgs पर हेक्टेयर है तो विच टाइप ऑफ फार्मिंग सिस्टम इट इज, तो एक्सटेंसिव हो गया। ये है 25000 kg पर हेक्टेयर तो कौन सा हो गया, सुपर इंटेंसिव हो गया। तो ये तीनों पैरामीटर्स, 1 नंबर, सेकंड नंबर एंड दिस इज थर्ड नंबर, इन तीनों पैरामीटर्स को आप थोड़ा सा देख लेना कि किस सिस्टम में कितने कितने इसके वैल्यूज है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखोगे, देखो इस हिसाब से इंटेंसिव, सेमी इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, तो फिशिंग डेंसिटी देखो, इंटेंसिव ना भी इंटेंसिव है तो डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा, पिरामिड का बेस यहाँ सबसे ज्यादा बड़ा है, ठीक है। एक्सटेंसिव में सबसे कम होगा स्टॉकिंग डेंसिटी। वैसे ही हम बात करें नेचुरल पॉइंट साइज की बात करें तो एक्सटेंसिव है नाम, तो एक्सटेंसिव में पॉइंट साइज सबसे बड़ा होगा एंड इंटेंसिव में पॉइंट साइज सबसे कम होगा, ठीक है। आर्टिफिशियल फीडिंग की बात करें तो इंटेंसिव में आर्टिफिशियल फीडिंग सबसे ज्यादा होगा एंड एक्सटेंसिव क्योंकि नेचुरल कंडीशंस में होता है एक्सटेंसिव, तो यहाँ पर आर्टिफिशियल फीडिंग नहीं करोगे, नेचुरल जो उन्हें फीड मिल रहा है। ये दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया
फॉर क्लासिफाइंग द फिशिंग फार्मिंग सिस्टम, अदर इंटेंसिव, सेमी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। ये क्राइटेरिया है और ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको याद रखने हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। 1, 2 एंड 3 वैल्यूज आपको याद रखने हैं, ठीक है। नाउ एक आरकेवीवाई स्कीम है। आरकेवी स्कीम्स के अंदर कुछ डेटा दिया गया हुआ है और आपके टीएनयू वेबसाइट में भी ये है, इसलिए ये ले लिया गया है, ठीक है। दे कैन आस्क कि आरकेवीआई स्कीम के हिसाब से फिश कल्चर है, फिंगरलिंस प्रोडक्शन के लिए कितने हैं, एंड मॉडिफाइड एक्सटेंसिव ब्लैक टाइगर शिम्प जो हमने अभी देखा उसके लिए कितने हैं। तो ये जो मैंने ब्लैक मार्किंग्स कर दिए हैं वो आप याद रख सकते हैं कि यूनिट एरिया इसमें कितना होता है, इसमें कितना होता है, इसमें कितना होता है, कल्चर एरियाज, स्टॉकिंग साइज एंड स्पीसीज, ठीक है। चलो स्पीसीज तो ऑलमोस्ट कॉमन है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। एंड प्रोडक्शन कितना हो रहा है एक एक सिस्टम में, टारगेटेड प्रोडक्शन इसमें कितना है, इसमें कितना है एंड इसमें कितना है, बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, इसको याद रखने की कोशिश करना। आरकेवीआई मॉडल के हिसाब से कितने कितने वैल्यूज है इन सारे पैरामीटर्स के, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। चलिए हिल्सा, हिल्सा इज अगेन वेरी पॉपुलर फिश इन इंडिया, ठीक है। ये एनाड्रोमस फिश है, जैसा हमने देखा था कैटाड्रोमस। तो कैटाड्रोमस के एग्जांपल कौन सा होगा, कैटाड्रोमस, एन एग्जांपल फॉर कैटाड्रोमस फिशेस। एनाड्रोमस का बेस्ट एग्जांपल इज हिल्सा। एनी एग्जांपल फॉर कैटाड्रोमस फिशेस? चलो आगे बताऊंगा। दिस इज नेशनल फिश ऑफ बांग्लादेश एंड स्टेट फिश ऑफ वेस्ट बंगाल, ये आपको याद रखना है हिल्सा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, देखो नाबार्ड मॉडल प्रोजेक्ट्स में इन सारे मॉडल्स के बारे में डिस्कशन किया गया, दैट इज कंपोजिट कल्चर, श्रिम्प कल्चर, वेटलैंड कल्चर, इंटीग्रेटेड फिश कम पोल्ट्री, इंटीग्रेटेड फिश कम डेयरी, इंटेंसिव फिश कल्चर। तो आप क्या करना, आप एक चार्ट बना लेना, ऐसे यहाँ पर लिख लेना, और जितने इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, जैसे आपने इंजीनियरिंग में किया, फार्म मैकेनाइजेशन में किया, तो आप गलती नहीं करोगे एग्जामिनेशन में। और यहाँ पे अब जो भी है, मान लो ग्रो आउट पीरियड इसमें कितना है, आप वैल्यूज डाल देना, ठीक है। यहाँ पे स्टॉकिंग डेंसिटी हम कितने ले रहे हैं डाल देना, यहाँ पे रियरिंग पीरियड कितना है डाल देना। तो सारे जितने भी क्वांटिटेटिव फैक्टर्स है आप सारे यहाँ पे एक चार्ट में बना के सारे को डाल देना, तो यू पीपल विल बी एबल टू रिटेन द थिंग्स फॉर अ लॉन्गर टाइम। नाबार्ड मॉडल प्रोजेक्ट से हमेशा आप देखना क्वांटिटेटिव फिगर्स ही पूछे जाते हैं, तो इसमें क्वांटिटेटिव फिगर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्पीसीज की जब हम बात करते हैं, जैसे मान लो फर्स्ट इज कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट कल्चर का ही मतलब होता है जहां पे यू आर यूजिंग मोर देन वन, कॉम्पोजिट वर्ड का ही मतलब होता है यू आर यूजिंग मोर देन वन स्पीसीज। तो स्पीसीज का कॉम्बिनेशन क्या होता है, हम यूज करते हैं इंडियन मेजर कार्प, या फिर एक्सोटिक स्पीसीज करते हैं, या फिर सिल्वर कार्प्स यूज करते हैं, ग्रास कार्प यूज करते हैं, कॉमन कार्प्स यूज करते हैं। अब देखो IUCN रेड लिस्ट में इसका नाम है कॉमन कार्प। तो दे कैन आस्क which of the following types of carps has been mentioned in the IUCN vulnerable list। तो कॉमन कार्प को इनलिस्ट किया गया उसमें, ठीक है। सिल्वर एंड ग्रास बोथ आर ऑफ चाइनीज ओरिजिन, तो चाइनीज कार्प्स भी कहा जाता है इनको, ये याद रखिएगा। एंड कॉमन कार्प इज कॉल्ड यूरोपियन कार्प, ठीक है। एंड इंडियन मेजर कार्प तो आपको पता ही है, कतला, रोहू एंड मृगल। ये किस किस जोन्स में फीड करते हैं वो भी आपको कॉम्बिनेशन यहाँ पे याद रखना है। जैसे कतला जो है वो सरफेस फीडर है, जैसे आप कॉम्पोजिट कर रहे हो ना फिशरी में, तो आप चाहोगे कि इस लेयर में भी फिशेज हो आपके पॉन्ड में, इस लेयर में भी फिशेज हो, एंड लास्टली यू वांट दैट कि सारे लेयर्स आपके ऑक्यूपाई हो जाए। तो उस हिसाब से आप स्पीशीज के कॉम्बिनेशन को लोगे, ताकि एक भी जोन आपका खाली नहीं रहे, यहाँ पे भी फीडिंग हो जाए, यहाँ पे फीडिंग हो जाए, यहाँ पे फीडिंग हो जाए। तो कतला जैसे सरफेस फीडर है, तो कतला ले लोगे एक स्पीशीज कॉम्पोजिट में। कॉलम फीडर जैसे है रोहू है, तो यहाँ पे रोहू आपने रख दिया। मृगल इज बॉटम स्पीशीज, तो यहाँ पे आपने मृगल रख दिया। तो इस हिसाब से आप करोगे। यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बॉटम फीडिंग स्पीशीज, तो मृगल है। तो इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन यूज करना है फॉर फिशिंग के लिए, ठीक है। रेशियो जब भी आप करोगे ये 10 इसका वैल्यू आएगा कॉम्बिनेशन, ठीक है। देखो 4 + 3 + इस तरह से जब भी आप कंबाइन करोगे 4 + 3 + 3 इट विल कम टू 10। 4 स्पीसीज अगर आप यूज कर रहे हो फिर भी इट विल कम टू 10। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, तो जोड़ के देखना कि जहां भी 10 आया उसका वैल्यू दैट विल बी द राइट आंसर, ठीक है। सारे याद नहीं रखने हैं, बट हमेशा कॉम्बिनेशन जो भी आएगा जोड़ के दैट विल कम इन अराउंड टू 10, ठीक है। चाहे आप 3 स्पीसीज करो, 4 स्पीसीज करो, आप 8 भी कर लो, फिर भी दिस वैल्यू विल कम टू अराउंड 10 ही आएगा, ठीक है। अब देखो कल्चर फिशरीज की जो हम बात कर रहे थे, तो बेसिक स्टेप्स जो होते हैं कल्चरिंग में फिशेस के लिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। सिलेक्शन ऑफ पॉन्ड, फर्स्ट स्टेप। पॉन्ड मैनेजमेंट करते हैं, पॉन्ड मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं, प्री स्टॉकिंग, स्टॉकिंग एंड पोस्ट स्टॉकिंग। जो हमने अभी बात की कि चार्ट आपको बना के यूज करना, तो यहाँ पे आप चार्ट में भी ये भी आप यूज कर सकते हो कि प्री स्टॉकिंग में क्या हम यूज कर रहे हैं, किस सिस्टम में। जैसे पोल्ट्री में आप कितना प्री स्टॉकिंग कर रहे हो,
ठीक है, डेयरी में आप कितना स्टॉकिंग यूज कर रहे हो, तो एक चार्ट में इसको बना के याद करोगे तो इट विल बी वेरी इजी टू रिमेम्बर। देखो लाइमिंग रेट हो गया या फिर यूज ऑफ मैन्यूर्स हो गया, तो इसके ऑलमोस्ट कांस्टेंट रेट है, तो सारे वैल्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इतना याद रखो कि पीएच रेंज जब इतना हो रहा है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए कि 4 से 5 व्हेन इज द पीएच, तो लाइमिंग हम 2000 कर रहे हैं, बट कब लाइमिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, नील कब हो जाएगा, ये जो है ये पीएच होगा तो नील हो जाएगा, आपको एक्सटर्नल कुछ भी ऐड नहीं करना है, तो सारे वैल्यूज को याद रखने की जरूरत नहीं है, बट फर्स्ट एंड लास्ट को थोड़ा सा देख के चलिए कि नील वैल्यू कब हो रहा है, और फर्स्ट स्टार्टिंग जो कर रहे हैं हम 2000 पर केजी से, वो कब कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एसिडिक कंडीशन है इसलिए आप लाइमिंग कर रहे हो ताकि उसको बेसिक बना सको, फिश वोंट सर्वाइव इन दैट एसिडिक सिचुएशन, तो इसको हम लाइमिंग इस वजह से कर रहे हैं, और कब जरूरत नहीं है इतना, जब पीएच होगा दैट मींस दिस इज द ऑप्टिमम, ये बहुत अच्छा पीएच है जहां आपको कुछ भी एक्सटर्नल ऐड करने की जरूरत नहीं है। फर्टिलाइजेशन ये ऑलमोस्ट आपको हर में एक ही तरह का मिलेगा, ठीक है, ये सब सारे वैल्यूज नो नीड टू रिमेंबर, याद रखने की जरूरत नहीं है। स्टॉकिंग डेंसिटी से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टॉकिंग डेंसिटी आप देख लेना किस कल्चर में कितना यूज कर रहे हो, जैसे पहला कंपोजिट वाला है तो फिश फिंगरलिंग्स ऑफ 50 to 100 ग्राम साइज को आपको करना है और एट द रेट ऑफ 5000 पर हेक्टेयर, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट, स्टॉकिंग डेंसिटी हर सिस्टम में इंपॉर्टेंट है, जहां जहां वैल्यूज दिए हुए हैं उन वैल्यूज को आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ग्रो आउट पीरियड इज अगेन इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ से 10 से 12 महीने लग रहे हैं इनको, ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, तो एवरी सिचुएशन है सम डिफरेंट वैल्यूज, और बहुत सारे वैल्यूज सेम भी हैं, जैसे पोल्ट्री और डेयरी में बहुत सारे वैल्यूज सेम है, तो याद रखने में कठिनाई नहीं होगी, यू वोंट फेस एनी प्रॉब्लम, तो यू कैन रिमेंबर ऑल द थिंग्स, ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे चीजों पे यहाँ पे फोकस करना है, जो मैंने बताया स्टॉकिंग डेंसिटी, ग्रो आउट पीरियड आपको थोड़ा सा देखना है, और जो वैल्यूज है जैसे लाइमिंग हो गया, ये सारे ऑलमोस्ट एक ही हैं, ना भी याद रखो तो चलेगा, ये सारे इतने डिटेल में आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, ऑप्टिमम पीएच कितना होना चाहिए, ठीक है, ये सारे चीज देख लेना डिफरेंट कंडीशंस में। देखो अगेन जैसे कि हम डेयरी में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे भी देखो क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से फाइनेंशियल वायबिलिटी से, इस सिस्टम में यूनिट साइज 1 हेक्टेयर है, ग्रो आउट पीरियड देखो वहाँ 11 से 12 मंथ था, ये हम सेकंड में आ गए, यहाँ पे देखो ग्रो आउट पीरियड इज 7 to 8 मंथ्स, तो यहाँ से क्वेश्चन पिछले 2-3 सालों से लगातार आ रहे हैं ग्रो आउट पीरियड से, जीओपी से, तो जीओपी हर एक का ध्यान से देख लेना, मैंने नीचे कंपैरेटिव शीट भी दिया है, जस्ट अ सेकंड आई विल शो यू। ये रहा देखो, इस तरह के कंपैरिजन की मैं बात कर रहा था, जैसे वेटलैंड फिशरी होगा, आईएफएफटी हो गया, पोल्ट्री हो गया, या फिर कॉम्पोजिट हो गया, कॉम्पोजिट में भी हमने 11 से 12 महीने देखे, तो सब में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज क्या है, इस तरह से आप चार्ट बना के थोड़ा सा देख लेना, स्टॉकिंग डेंसिटी इसमें कितना है, इसमें कितना है, इसमें कितना है, लाइमिंग के लिए कुछ स्पेशल कंडीशन है क्या किसी में, वो ऐसे करके एक चार्ट बना लोगे तो इतना जो लेंदी पेजेस है, नंबर ऑफ पेजेस, वो एक पेज में आपका रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है, एरिया। Now coming on to the this one, that is shrimp and prawn. So is there any difference between term shrimp और prawn के बीच में कोई difference है, और both are same? देखो shrimp very good. Aarti is saying prawn fresh water. As for shrimp, as far as I remember, as for shrimp, as for salty, ठीक है, और prawn जो है ये फ्रेश वाटर में जनरली हम यूज करते हैं, तो दोनों को याद रखिएगा कि ये सॉल्टी कंडीशंस में है, ये फ्रेश कंडीशन में, इसमें सिंगल पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, शायद कुछ क्रॉलिंग लेग्स, और इसमें 4 पेयर्स होते हैं, तो ये बेसिक डिफरेंस है, दोनों में ऑलमोस्ट एक ही तरह के होते हैं, बट ये बेसिक डिफरेंस है, 3 पेयर्स होते हैं, 3 पेयर्स समबडी इज सेइंग, तो ये बेसिक डिफरेंस आपको याद रखना है दोनों में। तब जब बात आती है कि इसमें देखो आपको कहाँ से पढ़ना है, तो इसमें आप देखो 3 चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखते हैं, जो मैं अभी बता दे रहा हूँ प्रॉन वाले में, एक चार्ट मैंने नीचे दिया हुआ है, इस चार्ट को याद रखिएगा। देखो टाइगर प्रॉन किसको बोला जाता है, इंडियन प्रॉन किसको बोला जाता है, व्हाइट लेग श्रिम्प किसको बोला जाता है, ये आपको बेसिकली याद रखना है, और तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, स्टॉकिंग कितने 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 कर रहे हैं, ठीक है, और किस कंडीशन में आप कौन से वैरायटी को यूज करोगे, लाइक दिस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग, tiger prawns are the fastest growing, this is the fairly fast growing and this is the fast growing, तो इनको आप जो रैंकिंग करनी होगी तो ये सबसे ज्यादा ग्रोथ है, इनका साइज देखो 75 to 100 ग्राम्स होता है, बट इनका ग्राम्स देखो 28 to 30 ग्राम्स ऐसे होता है,
ठीक है। स्टॉकिंग डेंसिटी हम कितने यूज कर रहे हैं, बस यहीं पे आपको ध्यान देना है, बस और कुछ नहीं देखना है, डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्टॉकिंग डेंसिटी पे हमेशा ध्यान दीजिए, और स्पेसिफिक अगर कुछ कैरेक्टर है उस स्पीसीज से रिलेटेड, लाइक ये फास्ट ग्रोइंग है, ये जो प्रॉन है ये काफी ज्यादा सैलिनिटी भी सर्वाइव कर सकता है, इट कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, जहां जहां मैंने हाईलाइट कर दिया उन पॉइंट्स को आप स्पेशली ध्यान देने की कोशिश कीजिए, वहीं से क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस है, बहुत ज्यादा डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि पहले जो हम कल्टीवेशन करते थे प्रॉन, टाइगर प्रॉन के ही कल्टीवेशन को करते हैं, बट दिस इज क्वाइट प्रोन टू वायरल अटैक्स, ठीक है। वायरल अटैक होने की वजह से नाउ वी आर यूजिंग दी व्हाइट लेग श्रिम्प को हम ज्यादा यूज करते हैं। अर्लियर वी आर यूजिंग टाइगर प्रॉन्स, बट नाउ वी आर यूजिंग दी व्हाइट लेग श्रिम्प को हम ज्यादा यूज करते हैं, ये आपको याद रखना है। और कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स जो मैंने बताया स्टॉकिंग डेंसिटी वाले पॉइंट्स को आपको स्पेशली याद रखना है कि किस कंडीशन में कौन सा यूज हो रहा है, प्लस अगर कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर है किसी एक ब्रीड के तो वो आपको याद रखना है, राइट। इससे ज्यादा याद मत रखो, मेरे ख्याल से 3 या 4 पेज में एवरीथिंग कैन बी एक्यूमुलेटेड व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। सीआरजेड की बात करें तो यहाँ थोड़ा सा देख लेना कि कोस्टल रेगुलेटरी जोन होते हैं जहाँ पे की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज या फिर एक्सटेंसिव फिशिंग एक्टिविटीज अलाउड नहीं होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट के हिसाब से भी कि यहाँ पे रेंज क्या होना चाहिए, और जो नन सीआर जोन्स होते हैं, सीआरजेड जोन्स होते हैं, वहां पे आप कितना तक हार्वेस्टिंग कर सकते हो, तो दिस डेटा इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे फिर आ गया वही सीड सिलेक्शन, स्टॉकिंग डेंसिटी जिसकी हम बात कर रहे थे उसके वैल्यूज यहाँ पे दिए हुए हैं, वो आप थोड़ा सा देख लेना यहाँ पे कि स्टॉकिंग डेंसिटी किस में कितना हम यूज कर रहे हैं, नर्सिंग में कितना यूज कर रहे हैं। ये क्वेश्चन देखो आ चुका ऑलरेडी, दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, इफ द एवरेज बॉडी साइज ऑफ श्रिम्प इज 30 grams देन हार्वेस्ट शुड बी प्लान्ड विद इन 7 to 8 days। जनरली 4 months पीरियड का हार्वेस्टिंग ये होता है, 7 to 8 days कब होता है, जब 30 ग्राम, जो क्योंकि साइज के हिसाब से ही इनका डिमांड होता है मार्केट में प्रॉन्स का, यू नो टाइगर प्रॉन के जितने बड़े साइज होंगे दैट इज मोर इन दी मोर डिमांड होता है। तो जब भी 30 ग्राम्स हो जाते हैं, ठीक है, व्हाइट लेग श्रिम्प के, दैट इज मैक्सिमम यू हैव सीन 100 ग्राम 75 to 100 ग्राम टाइगर प्रॉन में होता है, तो 30 ग्राम पे ही हम हार्वेस्टिंग करते हैं, दैट इज 7 to 8 days में हम उसको हार्वेस्ट कर देंगे। तो ये जो माइनर कुछ पॉइंट्स है इसको आपको कवर कर लेना। अब हम आ जाते हैं फिशिंग गियर्स की ओर। तो फिशिंग गियर्स में देखो यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, डग आउट कैनोज कहाँ यूज होता है, बस स्टेट और कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ यूज होते हैं वो आप देख लो। प्लैंक बेल्ट कैनोज यूज्ड इन केरला, मसूला बोट्स यूज्ड इन आंध्र प्रदेश, ठीक है, डिंगरी का कोई लोकेशन नहीं है, इसको मैंने देखा था। आउट रिगर कैनोज कर्नाटका में यूज होता है, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट कोस्ट में बिल्डअप बोट्स यूज होते हैं। तो ये सारे मैच दी कॉलम टाइप से आप इसको याद रख सकते हैं, क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, हो सकता है इस बार मसूला बोट से क्वेश्चन देखे ना, तो मसूला बोट इज यूज्ड इन आंध्र प्रदेश। ये डगआउट कैनो अर्लियर दे हैव आस्क्ड, इट इज यूज्ड इन गोवा। अब देखो मैकेनाइज्ड बोट्स में यहाँ आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप एक काम करना, व्हेन यू गो थ्रू द रीडिंग तो कुछ आप देख लेना, कुछ ऐसे डिस्टिंक्ट फीचर्स आपको यहाँ से निकालने हैं दैट यू कैन आइडेंटिफाई। हो सकता है एक लाइनर डेफिनेशन दे दे एंड दे आस्क व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज बीइंग डिस्कस्ड हियर, तो वो आप याद कर लेना अपने हिसाब से कि कौन सा एक स्ट्राइकिंग फीचर है जो कि डिफरेंशिएट कर रहा है सारे को, जैसे मेजरमेंट्स वगैरह ये सब याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, दे विल नॉट आस्क इन द क्वेश्चन। देखो जैसे पढ़ोगे तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टर्न ट्रॉलर्स। व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट क्लियरली सेज दैट इट इज वाइड स्प्रेड मेथड ऑफ फिशिंग इन इंडिया, सबसे ज्यादा यही हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन में दे देंगे विच ऑफ द फॉलोइंग फिशिंग गियर्स इज मोस्ट वाइड स्प्रेड यूज्ड इन इंडिया, तो स्टर्न ट्रॉलर्स हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं यहाँ पे। फिशिंग गियर्स की जब हम बात करेंगे तो इसको 2 वे में बांटा गया, एक्टिव प्लस पैसिव। बस आपको याद रख लेना कि एक्टिव के अंदर कौन कौन से आते हैं और पैसिव के अंदर कौन कौन से आते हैं, ऑड वन आउट्स ताकि आप फाइंड कर सको। जैसे क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्टिव, तो सारे पैसिव रहेंगे, एक एक्टिव रहेंगे, और उस तरह से आप ऑड वन आउट फाइंड कर सकते हैं। तो डिटेल में पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है इन सब चीजों को। अब टर्मिनोलॉजी पे आ जाते हैं, तो देखो टर्मिनोलॉजी पे एक्सटेंसिव एक्वाकल्चर, इंटेंसिव एक्वाकल्चर हमने अभी देख लिया उस चार्ट के हिसाब से, ठीक है। स्टॉकिंग डेंसिटी एंड ग्रो आउट पीरियड एंड प्रोडक्शन के हिसाब से आप इसको कर सकते हो। गेम फिश, ट्राउट इज एन एग्जांपल, इंपॉर्टेंट एग्जांपल फॉर गेम फिश, आपको याद रखना है, ठीक है। फिश, ये देखो ये टर्म एंड ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है और एक यहाँ से आ चुका है। एनाड्रोमस फिशेस क्या होते हैं, माइग्रेटिव फिशेस दैट लिव इन सॉल्ट वाटर, ठीक है, सॉल्टी वाटर में वो रहते हैं बट ब्रीड इन फ्रेश वाटर, मतलब मैक्सिमम टाइम जो है दे स्पेंट इन सॉल्टी वाटर बट फॉर ब्रीडिंग ओनली दे आर गोइंग इनटू द फ्रेश वाटर। कैटाड्रोमस में जस्ट ऑपोजिट हो जाता है, माइग्रेटरी फिशेस दैट लिव इन फ्रेश वाटर
ये फ्रेश वाटर में रह रहे हैं बट ब्रीडिंग के लिए सॉल्टी वाटर में जा रहे हैं, वाइस वर्सा। तो बोथ आर जस्ट ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, कैटाड्रोमस एंड एनाड्रोमस, दोनों आपको याद रखना है। Amphibiodromous, migratory fishes that live in both fresh and, क्योंकि amphi है that means it is live in both salt water and fresh water. Potamodromous, migratory fishes that move within the fresh, मतलब ये सिर्फ फ्रेश ही वाटर में रहेंगे, सॉल्टी से इनका कुछ लेना देना नहीं है। Oceanodromous, तो इनका सिर्फ सॉल्टी से लेना देना है, फ्रेश वाटर से कुछ लेना देना नहीं है। मैरीकल्चर एज ए नेम इंडिकेट्स, जितने भी हम ओशन से कल्चर करते हैं दैट इज कॉल्ड एज मैरीकल्चर, ठीक है। फिंगरलिंग, ईयरलिंग, इनको साइज के हिसाब से आपको याद रखना है कि कितने साइज से कितने साइज को हम फिंगरलिंग कहते हैं, कितने साइज से कितने साइज को ईयरलिंग कहते हैं, कितने साइज से कितने साइज को हम फ्राई करते हैं। तो ऑल दिस थ्री आर आल्सो इंपॉर्टेंट, फ्राई, फिंगरलिंग एंड ईयरलिंग। दिस वन नॉट सो इम्पोर्टेंट, केज फार्मिंग इन इंडिया, तो विशाखापट्टनम में डेवलप हुआ, बस आपको इतना याद रखना है यहाँ पे। लॉबस्टर फार्मिंग नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, यू कैन स्किप दिस वन, पढ़ने की जरूरत नहीं है लॉबस्टर फार्मिंग। मसल फार्मिंग इज ऑल्सो नॉट सो इम्पोर्टेंट, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं, नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। पोस्ट हार्वेस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट में ऑल द प्रोडक्ट्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं उसको हम डिस्कस कर लेंगे आगे जाके, ठीक है। यहाँ पे स्टोरेज लाइफ के हिसाब से बस आप याद रख लेना कि कितने टेम्परेचर में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हम कितने मैक्सिमम और मिनिमम टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। फिश ड्राइंग नॉट सो इम्पोर्टेंट, यहाँ पे स्मोकिंग का कंसेप्ट आता है, दिस वन व्हाट इज कॉल्ड कोल्ड स्मोकिंग एंड व्हाट इज कॉल्ड हॉट स्मोकिंग, बस इतना याद रखना कि 30 डिग्री सेल्सियस तक वी कॉल्ड इट एज कोल्ड स्मोकिंग, 30 to 70 वी कॉल्ड इट एज हॉट स्मोकिंग, बस इतना इज इम्पोर्टेंट। सॉल्टिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्टिंग आर देयर, मोनो सॉल्टिंग क्या होता है, पिट क्योरिंग क्या होता है, कोलंबो क्योरिंग क्या होता है, जस्ट 119 डेफिनेशन, इनको आपको देख लेना है, ठीक है, डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है। फिश प्रोडक्ट्स की जब हम बात करें तो फिश प्रोडक्ट्स में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है, जैसे वाइन क्लियरिंग में विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इज यूज, तो वो देख लेना है। जैसे स्क्वालिन है, वेरी इंपॉर्टेंट, इजीनग्लास, क्लैरिफिकेशन ऑफ वाइन्स, तो ये कुछ बाय प्रोडक्ट्स है जो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी जो सिलेबस में दिया गया वहां से ये टॉपिक, ठीक है। तो सबको नहीं देखना, जिसके कुछ स्पेसिफिक यूज है उसी को देख लेना। इजीनग्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत पूछा जाता है, इजीनग्लास को अच्छे से याद रखना है, स्क्वालिन क्या है अच्छे से याद रखना, सब देखने की जरूरत नहीं है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, वन पॉइंटर्स है, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे दिए हैं। और स्कीम से रिलेटेड तो PMMSY आप लोगों ने ESI में ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम फॉर एनीबॉडी। तो ये सारे वन पॉइंटर्स है आपके सामने, आई थिंक दिस इज इजी टू रिमेंबर एंड कवर, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। और ऑल इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट जो है फिशरी से रिलेटेड 1 to लेके 11 तक, इसको देख लेना। ये मैंने कुछ नए ऐड किए हैं, सिफनेट, NIF, PH880 एंड CICAF, इन तीनों को देख लेना। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिस्कस किया तीनों की इंपॉर्टेंस को, तो मैंने तीनों डाल दिए, इन तीनों के लोकेशन को देख लेना। बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो बहुत टेक्निकल है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, तो बस याद रखना कि होल जीनोम सीक्वेंसिंग 2 फिश के कंप्लीट हो चुके हैं, दैट इज रोहू एंड मागुर। ट्रिप्लॉइडी में क्या होता है, मोर फ्लैश प्रोडक्शन, ठीक है। ट्राउट एंड कैटफिश आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल फॉर ट्रिप्लॉइड फिशेस, ठीक है। एक सेंटर है दैट इज ICAR NBFGR DBT जर्म प्लाज रिसोर्स सेंटर, जो कि CMLRE में है। ये कहाँ है, दिस इज इन केरला ओनली, सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, ठीक है। एंड लास्ट एक्वाकल्चर मरीन बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम जो है वो 1988-89 में स्टार्ट किया गया बाय द गवर्नमेंट। सो दीज आर ऑल द मेजर एरियाज वेयर यू नीड टू फोकस। देखो बहुत सारी चीजें, देयर आर मेनी थिंग्स टू स्टडी बट यू नीड टू फोकस, बहुत रेस्ट्रिक्टेड एरियाज जहां को फोकस करना है। अगेन आई एम स्ट्रेसिंग क्लासिफिकेशन, बी वेरी क्लियर व्हाट इज द क्लासिफिकेशन, डिफरेंट क्लासिफिकेशन क्या है, उसके एग्जांपल्स क्या है। नाबार्ड मॉडल प्रोजेक्ट, जितने भी मॉडल्स है उसको आप एक चार्ट बना के याद कर लेना, क्वेश्चंस यहीं से आने के चांसेस है। टर्मिनोलॉजीज जो 8-10 टर्मिनोलॉजीज है उसको देख लेना। एंड लास्टली इज योर फिशिंग गियर्स को देख लेना, फिशिंग गियर्स एंड इंस्टीट्यूट्स। यही 6-7 मेजर एरियाज है जहां से बेसिकली क्वेश्चन आते हैं। और प्रॉन वाले एरिया से अगर देखना है तो वो 3 जो बॉक्स बना हुआ है और तीनों की क्या स्टॉकिंग डेंसिटी है क्या है, बस उतना आपको याद रखना है। तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये 6 जो मेजर एरियाज हैं वहां से बेसिकली क्वेश्चन आते हैं। और बाकी एरियाज भी है, मैंने जैसा कि आपको बताया, डोंट रन बिहाइंड दोज एरियाज, भूल जाओगे, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो ज्यादा नहीं होगा। तो इन 6 एरियाज को आप ट्राई टू कवर, खास करके नाबार्ड मॉडल वाला अच्छे से कवर कर लेना।
क्लासिफिकेशन वाला अच्छे से कर लेना, ठीक है। ये दोनों कर लोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस व्हाटएवर दे विल आस्क यू पीपल विल बी एबल टू सॉल्व। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, डोंट टेक स्ट्रेस कि फिशरी 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 आई डोंट नो, just you try to revise these 3-4 things. I think that will be sufficient for the upcoming examination, ठीक है। So anybody if you want to ask some questions related to this you can ask, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, आपको बस एक क्लियर आइडिया होना चाहिए कि किस एरिया से मुझे कितना 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 पढ़ना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड जो भी रिसेंट स्टैट्स मैंने डिस्कस किए हैं दोज स्टैट्स शुड बी कवर्ड थॉरोली, ठीक है। बस इतना ध्यान में रखिए। न्यू डेटा दिस पीडीएफ में मैंने डाल दिया ना सुमित, सो आई विल शेयर दिस पीडीएफ, ठीक है। जब भी मैं कुछ चेंजेस करूंगा आई विल शेयर दैट।